सबके पास जाओ, सबके पास जाओ, काउंसिलर तू है साले। अरे तो तुम कौन हो? मैं तो भाई आवाज ना रखिए। साले जब देखो जब यहाँ पे मगज मारिया करवाता है। ए तुकारा मत जाइए तुकारा मत जाइए किसको तुकारा देता है? ए मेरी बीवी होगी तो तुकारा देता है। चल निकल बे चल निकल निकल यहाँ से चल देखो तुकारा देता है मेरे को चल निकल यहाँ से છેલ્લા ઘણા સમયથી જબરજસ્તી પોતાની જાતને નેતા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર તરીકે પોતાને સ્થાપિત કરવા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના આકાઓને ખુશ કરવા જે પ્રયત્નો અહીંયા થઈ રહ્યા છે. થોડા દિવસ અગાઉ કોર્પોરેશનની ઓફિસમાં છત્રી લઈને બેઠા, ખેસ લઈને બેઠા, આયુષ્યમાનમાં ઓફિસમાં એમના ટેબલમાં ખેસ, સિવિક સેન્ટરમાં છત્રી, રોજિંદુ આ કામગીરી લઈને આ લોકો કામગીરી કરતા હતા. અને છેલ્લા સમયથી વિસ્તારમાં જે કોઈ બી અહીંયા આવતો હોય, જેવી રીતે આરટીઓમાં કોઈ લાયસન્સ બનાવવું છે, આ બનાવવું છે, પકડી લે છે એજન્ટ, એ રીતનું, અને કોર્ટમાં જામીન કરાવી છે, શું કરાવવું છે એ રીતના આ લોકોનો પ્રયત્ન હતો. કોઈ પણ દુઃખી વ્યક્તિ આવતો હતો, પરેશાન વ્યક્તિ આવતો હતો. અમારું કહેવું એક જ છે કે તમે સમાજમાં એક જ છો, સમાજ માટે કામગીરી કરો, પક્ષાપક્ષીને બાજુ પર રાખો. આજે કોઈ કોઈનું નથી, આપણે સમાજમાં કામ કરીશું. અલ્લાહ તાલા જે કંઈ બી છે એ જુએ છે. અને કાર્યકર્તા બનો, લોકોને મદદમાં બનો, મદદરૂપ થાઓ, કાયરકર્તા ના બનો. આ કાયરકર્તા બની ગયા હતા, હતાશ થઈને જે ભારતીય જનતા પાર્ટીને બીજાની આમ આદમી કે એને MIM એ લોકો હારી ગયા છે. પોતે કહે છે અમે હતાશ, હિંમત નથી, ફલાણું નથી. અરે ભાઈ, જ્યારે અમે મારી સાથે આ જ કાઉન્સિલર હતા MIMના, એ સમય પછી શું કર્યું હતું? કેમ એ પાણી કાઢી ન શક્યા? કાલનું તો પાણી છે જ નહીં, કાલનું ગટર નથી, બધું જ છે. જે જગ્યાએ કામગીરી અમે વારંવાર માનવતા ખાતર કરી છે, સુપર સર્કલો લઈ જઈને કરી છે, એ લોકોને ઉશ્કેરાયા. નો ડાઉટ અમે કહીએ છીએ પ્રજા ખૂબ પરેશાન છે. હું તો બોર્ડમાં લાસ્ટ ટાઈમે બોલ્યો હતો, કાંકરિયામાં પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જાનવર જલસા કરે છે, જાનવરો મરી ના જાય તેની ચિંતા હોય છે. આ પ્રજાને મરી જાય તો એની ચિંતા નથી. પીવાનું પાણી નથી મળતું. પીવાના પાણી માટે હું હાઈકોર્ટમાં દ્વાર ખખડાયો હતો. સાથે સાથે ડ્રેનેજ અમને એમ નથી મળી, ડ્રેનેજ માટે બી હાઈકોર્ટ લડ્યા છે તો ડ્રેનેજ મળી છે. પીવાનું પાણી મારી PIL ચાલુ છે, ફંડામેન્ટલ રાઇટ છે. પીવાનું પાણી નહીં મળી શક્યું લોકોને. સાથે સાથે નલ જલ યોજનામાં નેટવર્ક નાખવામાં નથી આવ્યું. લોકો 4 વર્ષથી પૈસા ભર્યા છે, એનું બી કામ નથી થયું. એની બી અમારે વારંવાર લડત છે. અને સાથે સાથે હાઈકોર્ટમાં બી અમે વારંવાર ટકોર મૂકીએ છીએ, એફિડેવિટ મૂકીએ છીએ. પણ આજનો ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન માના નામે પેડ, અમે કીધું બધી જગ્યા લગાડો પેડ, પણ પેડ લગાવતા પહેલાં આ પ્રજા અહીંયા 2 ટેન્કર ચાલતા હતા, એ ટેન્કર બી છીનવીને લઈ ગયા. અને પેડ સુકાઈ ના જાય એની ચિંતા છે, આ પ્રજા મરી ના જાય એની ચિંતા નથી, પાણી વગર તડચી રહી જાય એની ચિંતા નથી. છતાં અમે મેયર સાહેબને વારંવાર રજૂઆત કરી. મેયર સાહેબ મારા અંગત મિત્ર છે. એ આ કામગીરીમાં અમે સતત એમની સાથે અમે રહ્યા છીએ. અને એ મુદ્દામાં નિષ્ફળ રહેલા લોકો સામે અમે અહીંયા ટકરાવી રહ્યા છે, અમે કામગીરી કરી રહ્યા છીએ. એમને શરમ આવી જોઈએ. આજે અને ગઈકાલે મારા ઘરે લઈ જઈને, શું મારા ઘરે લઈ જઈને આ પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ શકે છે? હું પોતે સામેથી એમના ઘરે જાઉં છું, તો મારા ઘરે લઈ જઈને પ્રશ્ન સોલ્વ થતો નથી. અને મારી હાઈકારા બોલાવો, મને જાનથી મારી નાખીને ધમકી આલી છે. આજે અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. અને કોર્પોરેશનમાં આજે આવવાની, મને મારી નાખવાની ને મારવા આવવાની કોઈ જરૂર નથી. શા માટે? તમારા વિચારો ખોટા છે. તમે મારા વિરુદ્ધમાં કેન પ્રકારની સાજિશો રચો છો. અને આજ નહીં તો આવનાર સમયમાં મારા પર હુમલો થાય કે જે કંઈ બી થાય તેની પાછળ મુનાફ ચેનલ અને એની ટોળકી જવાબદાર છે. અને PI સાહેબને કીધું કે સાહેબ આપ શ્રી આના પર કડકમાં કડક સજા થાય, એ જરાય ચલાવી ના લેવામાં આવે
એની કાળજી લઈ અને એફઆઈઆર નોંધવાની છે અને કામગીરી અમને વિશ્વાસ છે પોલીસ ઉપર કે આ કામગીરીમાં અમને પૂરેપૂરી મદદ મળશે, ન્યાય મળશે એવું આશા રાખીશ. ગટર લાઇનનો મસલો છે. જે જગ્યાએ ગટર લાઇન અમે ટેક્સ બિલ લઈ અને કામગીરી કરીએ છીએ, સિટીમાં ચાલીઓ છે, પોલ છે, ખાંચાઓ છે, ત્યાં નિયમ લાગુ પડતો નથી. નિયમમાં એવું છે કે ખાંચો, પોલ, ગલી હોય તેમાં નિયમ કોઈ પણ જાતના ડાયરેક્ટ કામગીરી થઈ ગઈ. પણ અહીંયા સોસાયટી આવે છે, સોસાયટીમાં પાણી બી પહોંચાડવું હોય તો એ ચેમ્બર બનાવીને પંપ દ્વારા એ સોસાયટીની જવાબદારી કરવાની હોય છે. સોસાયટીમાં સફાઈ કામદાર બી જતા નથી. સોસાયટીમાં કોઈ બી કામગીરી કરવી હોય 80-20માં અમે 5 વર્ષમાં 10 વર્ષમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં મોલ્લે ગલીમાં બ્લોક લાઇટ ગટર નાખી છે. એના કારણે અમદાવાદ શહેરમાં હાઈએસ્ટ વોટથી અમે જીતીને આવ્યા છે અને લોકોનો પ્રેમ મળ્યું છે ને અમને પ્રજાએ વોટ આપી છે. અમે કામગીરી કરીશું. અમે કામગીરી નહીં કરીએ તો કુદરત અમને માફ નહીં કરે. पिछले 15-20 दिनों से मक्तमपुरा की जनता बहुत परेशान है. ड्रेनेज की समस्या रोज लेकर आती है और काउंसिलर उस पर ध्यान नहीं देते और स्थानिक जनता जो भी है वो देखती है कि हम लोग वहाँ मक्तमपुरा वार्ड ऑफिस में आधार कार्ड की सेवा देते हैं, फॉर्म भरते हैं. आयुष्मान कार्ड के लिए कोई आता है उसके लिए फॉर्म भरते हैं और पब्लिक को इस बार भरोसा है कि भाई बीजेपी कार्यकर्ता जो अगर इनको रजूआत करने में आएगी तो ये हमारा कुछ काम करके देंगे और पब्लिक के भरोसे पे हम खरे उतरे. जो वार्ड की जो एरिया की मक्तमपुरा वार्ड से हमें समस्या आई थी हमने उसका निराकरण ला के दिया, उसका प्रॉब्लम सोल्व करके दिया. और वही देख के दूसरे वार्ड की भी मक्तमपुरा वार्ड में से भी कहीं दूसरी पब्लिक आई थी तो उनके लिए मैं कल हाजी भाई को रजूआत करने गया था. हाजी भाई वार्ड ऑफिस थे नहीं तो पब्लिक का ऐसा कहना था कि भाई हमने हाजी भाई को कई बार फ़ोन किया, हाजी भाई फ़ोन नहीं उठाते हैं और आज वार्ड ऑफिस में भी नहीं था, आप उनके घर ले चलो. मैं उनके घर लेकर गया. पब्लिक वहाँ पर शांति से रजूआत कर रही थी तो वहाँ पर भी इन्होंने गलत मैसेज वायरल किया. उनके लड़के से पब्लिक रजूआत करने के लिए बात कर रही थी तो उनके लड़के ने ये कह दिया कि वो मुनाफ चैनल वाला खड़ा है, उनको बोलो धारासभ्य के पास ले जाए. अरे भाई काउंसिलर आप हो और वार्ड की जनता ने आपको वोट दिया है तो आपको ही काम करना है. धारासभ्य तो अपना काम कर ही रहे. धारासभ्य ने मक्तमपुरा वार्ड में जिम दिया, लाइब्रेरी दी, 2 स्कूल पास हुई है, अभी एपीजे अब्दुल कलाम हॉल बना के दिया. और रोड गटर की जो समस्या है वो काउंसिलर के देखने की आती है तो काउंसिलर इस समस्या से छूटने के लिए अवर-नवर धारासभ्य को टारगेट करते हैं और पब्लिक को गैर मार्ग दौड़ते हैं. मैंने पब्लिक को कल कहा था कि भाई अगर आज काउंसिलर आपको नहीं काम करके देते तो हम कल फिर वार्ड ऑफिस जाएंगे. और आज हम फिर वार्ड ऑफिस गए और हाजी भाई वहाँ बैठे हुए थे और पब्लिक वही थी जो कल इनके घर गई थी तो रजूआत कर रहा था तो मुझे बदतमीजी से हाजी भाई ने ये कहा कि तू तेरे धारासभ्य के पास जा, यहाँ काम नहीं होगा और बदसलूकी करने लगे तो मुझे भी थोड़ा अपशब्द बोलना पड़ा. और आपने देखा ही होगा कि वीडियो फिर वायरल हुई. देखिए सबसे पहले तो बरसों जूना संकलित नगर है, वहाँ पर भी आज भी ड्रेनेज लाइन ओवरफ्लो हो रही है. फतेहवाड़ी विस्तार ले लो, फतेहवाड़ी के अंदर यूसुफ मस्जिद ले लो, यूसरा पार्क ले लो, आमेना पार्क ले लो, हाफिजी मस्जिद ले लो. आज की तारीख में भी आज जो मेरी उग्र बोला चाली हुई, इन लोगों ने मुझे परेशान करने के लिए पुलिस बुलाई. मैंने भी सामने क्रॉस फरियाद की. मैं पुलिस स्टेशन से 3 बजे आया जवाब लिखाकर तो भी मक्तमपुरा वार्ड में 70 से 80 मेरी माँ बहनें बैठी हुई थी और काउंसिलर आज भी भाग गए थे. देखिए काउंसिलर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, काउंसिलर को काम नहीं करना है, इसी वजह से वो भाजपा का नाम ले रहे हैं. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई काम नहीं हो रहा है तो आप राजीनामा दे दो. मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ पेटा चूटनी हुई और मक्तमपुरा की जनता ने
बीजेपी का काउंसिलर जिताया तो आपके वहाँ विकास होगा होगा होगा। उनका ये भी कहना है कि आप हमारे घर पे आते तो बीजेपी के धारासभ्य के घर पर क्यों पब्लिक को लेके नहीं जाते। मेरे साथ एक भाई बैठे हुए ही है, मैं 3 रोज पहले उनको लेकर गया हूँ धारासभ्य के पास और हमने क्या रजूआत करी है वो भाई खुद बता देंगे आपको। देखिए, अगर काउंसिलर काम नहीं करेंगे तो इसी तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और आपसे राजीनामा मांगा जाएगा। बीजेपी ने पहले भी मदद की है, मक्तमपुरा के वार्ड के विकास के लिए हमारे धारासभ्य श्री हमेशा खड़े हुए हैं और मैंने जब जब अमित भाई ठाकर को रजूआत की है ऑन द स्पॉट काम हमारा किया हुआ है। देखिए, पिछले कई महीनों से जब से हम जीत के आए हैं उसके दूसरे दिन से जो हारे हुए लोग हैं, जो हताश हो चुके हैं, पब्लिक ने उनको घर भेगी कर दिए हैं, उनकी घर वापसी करा दिए, वो लोग दूसरे दिन से लिखना शुरू कर दिया था हमारे खिलाफ सोशल मीडिया में कुछ अनाप शनाप बोलते रहते थे और बहुत गंदी तरीके से गंदी लैंग्वेज में हमारे ऊपर आक्षेप लगाते थे। हमने पीआई साहब से भी आके बात की थी। पीआई साहब ने ये कहा था कि आप आके एविडेंस दे दियो, मगर हमने ये सोचा कि ये आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, मगर ये सुधरने वालों में से नहीं हैं। 3 महीने से कंटिन्यूस हमारी ऑफिस के पार आके सामने खड़े रहना, हमको हैरेस करना, हमारे बारे में कुछ कुछ बोलना और अभी तो हद ही कर दी, पब्लिक के बीच में जाके हमारे खिलाफ गलत गलत बातें करके पब्लिक को उस्केर के ला रहा है। मैं जब से चुटा के आई हूँ और मेरे साथी तीनों काउंसिलर कंटिन्यूस हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं इतना वीडियो नहीं डालती थी कि भाई एक गटर साफ कराई या ड्रेनेज हुआ कि ये हुआ कि वो हुआ, जो भी मसले हैं उसमें बार बार सोशल मीडिया में डाल के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी 30 साल काम कर चुकी हूँ एनजीओ में और मैंने ये पब्लिक का ही काम किया है। अभी जिस तरह से ये आक्षेप करते हैं कि काउंसिलर काम नहीं करते, ये वही नूरजहां दीवान है जो 2010 के अंदर इन पब्लिक की सुविधाओं के लिए, प्राथमिक सुविधाओं के लिए हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे और 2 साल तक मैंने हाईकोर्ट के धक्के खाए थे और नदीम सैयद, तब जाके यहाँ पे सुविधाएं हो रही है। दूसरा कि एएमसी ने खुद ने आके एफिडेविट करा के दिया था कि हम लोग प्राथमिक सुविधाएं जुहापुरा में देंगे। तो जिन लोगों के लिए मैं हाईकोर्ट तक गई हूँ, क्या इन लोगों के लिए मैं काम नहीं करूँगी? इलेक्शन ही मैंने इसीलिए लड़ा था कि मैं कम से कम वहाँ पे मैन थीम में जाके काम करूँ। रात को सुपर सर्कल 12 बजे आता है ना, तो मैं 12 बजे से लेके 4 बजे तक वहीं पे एरिया में होती हूँ, फतेहवाड़ी में, एक लेडीज़ होके कि कहीं ये मजदूर भाग ना जाए, अच्छे से काम करे। दिन में 11 बजे से लेके 3 बजे तक मैं ऑफिस में रहती हूँ और ये बता रहे थे, कल हम कमिश्नर को मिलने गए तो ये बताते कि देखो ये ऑफिस बंद है, ताले हैं, नहीं आते। मतलब कितना झूठ बोलने की कोई एक लिमिट होती है। कल भी हाजी भाई, नादिया, हितेंद्र भाई, हमने कमिश्नर का डीवाईएमसी का हमने टाइम लिया था तो उनको मिलने जाने का था, हम लोग यहाँ मिलने वाले थे, तो ये लोग तीनों वहाँ पहुँचे और मुझे बार बार फ़ोन आते थे। तो मैंने बोला नहीं, पब्लिक आई है, उनको जवाब देना ज़रूरी है। मैं सिविक सेंटर पे आके पब्लिक से मिलने आई तो वहाँ पे पब्लिक को भड़काया गया गलत रीत से, और वो पब्लिक थी जो कैनाल के उस पार रहती है, जिनके पास टैक्स बिल नहीं है और इनकी बस्ती बहुत गंदी है। नो डाउट, मैं 2-3 दफ़ा वहाँ जाके आई हूँ, देख के आई हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा था और रोना भी आ रहा था कि इतनी ख़राब ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं कि ड्रेनेज का पानी उनके घरों में है, इनके किचन में है, आने जाने के रास्ते इतने ख़राब है, पाँव भी नहीं रख सकते, ऐसे इस तरह की परिस्थिति है, स्मेल इतनी गंदी आ रही है, फिर भी वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और हम लोग बार बार अधिकारियों को भी रजूआत कर रहे थे, मगर वहाँ से ये कहने में आया कि ये जो एरिया है वो नॉन टीपी एरिया है। तो नॉन टीपी एरिया में वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने ये कहा कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो एएमसी का लिया है, जहाँ पे सरकार ने ड्रेनेज बना के दिए, प्राइवेट ड्रेनेज जो है वो बिल्डरों ने बना के दिए, तो वो मैं साफ़ नहीं करूँगा। उसके बावजूद हाजी भाई, मैं, नादिया, हितेंद्र भाई लड़ के बकेट भेज रहे हैं, कुछ ना कुछ करें, मगर इस बार पानी इतना सारा आ गया, मतलब आप सभी को पता है कि 20 इंच पानी आया था और पूरा गुजरात डूब रहा था। और ज़्यादातर ये हमारा इलाका जो है वो रकाबी जैसा है कि पूरे अहमदाबाद का पानी मक्तमपुरा में आता है। आपको पता होगा कि ये पूरा एरिया जो है वो नदी इलाका था, वो तो धीरे धीरे नदी उस तरफ चली गई,
सारी ड्रेनेजें बैक मार रही है। उसके बावजूद जितना भी पानी आया सारी ड्रेनेजें बैक मार गए। तो धीरे धीरे काम हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, सारे लोग काम कर रहे हैं, बाकी एनजीओ के लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। मगर ये लोग हमारी ऑफिस में आके ये कह रहे थे कि हमारे पास अब कोई काम नहीं है, 5 साल तक हम लोग बिल्कुल फ्री है, 5 साल तक हम तुम्हारी नाक में दम ला देंगे और तुमको इतना हैरेस करेंगे कि तुम सामने से 6 महीने में रिज़ाइन कर दो। अरे हम रिज़ाइन करने वाले कौन हैं? आप हमारे से रिज़ाइन लोगे? आपको तो हम तो संघर्ष के साथ ही है, बरसों से हमने पब्लिक का काम किया है और मैंने तो नेशनल लेवल पे लोगों के हक की लड़ाई लड़ी है। जब मैं बाकी लोगों से नहीं डरी तो तुम्हारे 4-5 गुंडों से क्या डरने वाली हूँ? पब्लिक हमारे साथ थी, आज भी लोग हमारे साथ हैं और लोगों ने जंगी बहुमति से हमको जिताया है। पब्लिक को हमारे पे विश्वास था, इसीलिए पूरे गुजरात में लोगों के वोट नहीं आए। सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अंदर हम 4 काउंसिलर के पूरे गुजरात में वोट नहीं है, इतने वोट लोगों ने हमको दिए हैं। तो हम पब्लिक का काम करेंगे, करते थे, आगे भी करें। जो बदतमीजी की, जो गाली गलौज की हमारे साथ में, मुझे जिस तरह से गालियाँ दी, हाजी भाई को जिस तरह से गालियाँ दी, मार डालने की धमकी दी और कल जिस तरह से मेरे साथ बदतमीजी हुई, मोइन मंसूरी करके जो बदतमीजी कर रहा था, पब्लिक को उसके रहा है, बोलो बोलो गाली दो, बोलो बोलो। मेरे पास वीडियो है, वो मेरे पास में वो सबूत है। तो तुम पास रह के हमारे साथ बदतमीजी करवाओगे हमारी, इन लोगों को हम बख्शने वाले नहीं हैं। आज हम इनके खिलाफ FIR कराने वाले हैं।